गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने मुख महावाक श्रवण किया सिंह साहिब दी मुबारक रसना तो, जो शब्द है आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। तो इतनी गल तो स्पष्ट हो गई कि जो परमेश्वर है वो आद तो पूरन है। जदों जुगां की शुरुआत हुई सी उदों भी पूरन सी, फिर जुगां के विचकार जिसनों मद कहते ने उदों भी पूरन सी, और अखीर तक भी वो पूरन ही होवेगा। अखीर तक तो किस बाबत गल की है? परमेश्वर दे बाबत। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। हुण ये भुलेखा तो खत्म हो गया कि जदों अखंड पाठ साहिब रखना है तो 705 ते ही मद की अरदास करनी है। हुण मद की अरदास का कोई इत्थे जिक्र नहीं है। और हाँ, जे अखंड पाठ साहिब चल रहा होवे, सहज पाठ साहिब चल रहा होवे, संगत बैठी होवे, आप जी देग तैयार कर सकते हो, अरदास कर सकते हो, प्रसाद बन सकते हो, लेकिन मद की कोई अरदास नहीं है। सिमरंत संत, जो संत पुरुष हैं वो सिमरन करते हैं किसका? सर्वत्र रमणम, जो सारियां दे विच रमिया होया है। राम सारियां विच रमिया होया है। दशरथ पुत्र की गल नहीं है इत्थे, जो सारियां दे विच रमिया होया है वो दी गल है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। फिर उहदे सिमरन नाल की कुछ मिलता है? साहिब कहते हैं नानक अघनासन जगदीसरे। अग कहते ने पाप, अग कहते ने गुनाह। पाप मिट जाते हैं। तो ये भी गल अपने जैन विच वसा लेना कि जो असी गुनाह कर बैठे हाँ, जे अज असी गुरु की हजूरी विच आ गए हाँ, तो साहिब कहते ने गुनाह उसके सगल आफू। तेरे जन देखें दीदार। हाँ, गुनाह उदों माफ़ होणगे जदों अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार। तो परिपूर्ण परमात्मा नूं अपना मित्र बना, अपना अजीज बना ले, अपना साथी बना ले। चलती हुई लड़ीवार व्याख्या जे मैं अर्ज करा, शरीर की बनतर इस तरह की है, केवल ते केवल मनुख दे शरीर की बनतर, जिहदे विच पंज ज्ञानेंद्रियां ते पंज कर्मेंद्रियां। जिन्हां नाल ज्ञान हुंदा है उसनों कहते हैं ज्ञानेंद्री। वो इंद्री जिस नाल ज्ञान हुंदा है। अखां हन ज्ञान हुंदा है, कन हन ज्ञान हुंदा है, नासिका है ज्ञान हुंदा है, रसना है ज्ञान हुंदा है। फिर इन्हां दे नाल नाल पंज कर्मेंद्रियां जिन्हां नाल असी कर्म करते हाँ वो भी पंज हैं। हत्थां नाल काम करते हैं, पैरां नाल असीं काम करते हैं, इंद्री है।
ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਲਿੰਗ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੇਂਦਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮੇਂਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮੇਂਦਰੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਭ ਜੀਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਾ ਜੋ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਕੜਵਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਰਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟਦੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੜਵਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸਨੇ, ਕੜਵਾ। ਤੋ ਰਸਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਗਜੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਦਮਗਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਐ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਰੋਗ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 90%। ਬਾਕੀ 10% ਰੋਗ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 90% ਰੋਗ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਹੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਤੋ ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ
क्योंकि मन साडा समाज तो बनिया है। फलाने ने ये गल आखी, फलाने ने ये गल आखी, फलाने ने ये गल आखी, मन होर मजबूत हो गया, होर मजबूत। मन कमज़ोर हो गया दुनियावी तल ते। तो जे मन कमज़ोर होवे, कहंदे ने उन्हां दे दुनियावी फैसले फिर दूजे लोग करते हैं। जिहदा मन कमज़ोर है, जिहड़ा डरदा है, उहदे फैसले दूजे लोग करते हैं। जिहड़ा खुद ही बलवान है, वह खुद दे फैसले खुद करता है। इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत। तो साहिब कहंदे ने तन भी फिक्का, मन भी फिक्का। फिर ऐसे मनुख नूं सारे दे सारे यही कहंदे ने, ये तां फिक्का है, फिक्को फिक्का सदी है। सारे यही कहंदे ने तां फिक्का है, इहदे नाल की गल करिए, ये तां फिक्का है। इहदे नाल की बोलीए तां फिक्का है। ये बोल बोल विच पता नहीं किस तरह की अग सुट दवे, कोई पता नहीं। तो ऐसे मनुख नूं सारे कहंदे ने ये फिक्का है। इत्थे तक ही नहीं, फिक्के मनुख की शोभा भी फिक्की है। फिक्के फिक्के फिक्की सोए, सोए कहंदे ने शोभा नूं। मिठे बोलन वाले की शोभा भी मिठी है, फिक्के बोलन वालियां की शोभा भी फिक्की है। जे निरंकार की गल करिए, जो वो परम जोत है, उसकी रूप रेखा गुरु ग्रंथ साहिब विच तैयार की है कि वो जो ठाकुर है वो कैसा, जो परमात्मा है वो कैसा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने, मिठ बोल डाजी हर सज्जन स्वामी मेरा, कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने, अवगण को ना चितारे, को ना चितारे। हुण कितनी हैरान कुन गल है, ध्यान दे नाल सुनना। आप जी 50 साल की उम्र विच गुरु कोल आए, जां 60 साल 70 साल की उम्र विच गुरु कोल आए, तो गुरु ने एक बार भी आप जी नूं नहीं पुछना तू फलाने दिन फलाना गुनाह कीता सी, क्यों कीता सी, एक बार भी नहीं पुछना है, एक बार भी। और इहदा सबूत जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल, जो औरंगजेब बादशाह का पुत्र बहादुर शाह जांदा है, महाराज मैनू मेरे पिता का राज चाहिए है। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं चंगा फिर। तो बहादुर शाह की कहता है भाई नंद लाल नूं कि गुरु साहिब ने एक बार भी नहीं किया कि तेरे पिता ने मेरे पिता का कतल किया, तेरे पिता ने मेरे बच्चों नूं शहीद किया, तेरे पिता ने मेरे अनन भगतां नूं सिखां नूं कतल किया, एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। ये सबूत है कि अवगुण को ना चितारे, को ना चितारे। एक होर हैरान कुन गल कि 10 गुरु साहिबान जो होए, जदों आप जी ने इलाही जोत दूजे घर विच टिकाई, दूजे शरीर विच टिकाई, तो उस तो बाद आप जी 2 दिन 3 दिन मसां रहे ने, रुखसत कर गए ने। इसका भाव की है कि आप जी नूं खबर सी समा करीब आ गया है, खबर सी कि हुण समा करीब आ गया है शरीर छड्डण दा, चोला छड्डण दा, तो ये जोत टिकाण दा हुण समा है। मैं इस करके अर्ज कर रहा, ऐसे पूरन गुरु साहिबान दे बोल भी पूरन हन, बाणी भी पूरी। जैसा अनुभव सी वैसी बाणी, जैसी बाणी वैसा आप जी का जीवन। जेड़ा मनुख फिक्के बोल बोलता है, उसकी शोभा इत्थे भी फिक्की है, फिक्का दरग है, सटी है। जेड़ा मनुख फिक्के बोल बोलता है, उन्होंने सुटिया जाता है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਰਗਾਹ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ? तो महात्मा ईसा कहता है, परमात्मा माही गीर के जाल जैसा। मछुआरा, जिवें मछुआरे का जाल होंदा है, जिवें जाल वो सुटदा है, बहुत सारिया मछलियाँ उस जाल विच फस जांदियां। फिर की होंदा है, जिहड़ियां छोटियां छोटियां मछलियां उन्होंने फिर सुट दिंदा है मछुआरा, वड्डियां वड्डियां मछलियां पकड़ लैंदा है। छोटी मछली सुटी गई पानी विच, वड्डी मछली पकड़ लेंदी। तो परमात्मा की कथा, परमात्मा का कीर्तन चलते हुए दीवान थां थां ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, समझ लवो कि परमात्मा ये जाल सुटदा है अपना। आप जी कीर्तन सुनने वास्ते बैठते हो, कथा सुनने वास्ते बैठते हो, ये जाल सुटिया, आप जी आ गए। ਹੁਣ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ये जो परमात्मा ने सानू शरीर बख्शिया है, जे हकीकत में देखिए तो असीं सुटे गए हाँ, सुटे। क्यों सुटे गए हाँ? भाई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। इस करके सुटे गए हाँ, तो उसनों मिल ते पूरन हो। तो इतना ध्यान रखना, इतना ख्याल रखना, फिके बोल बोलोगे फिर सुटे जाओगे, क्रोध करोगे, हंकार करोगे, निंदा करोगे, फिर सुटे जाओगे, गुनाह करांगे, अपराध करांगे, फिर सुटे जावांगे, फिर आना पेगा। आप जी ने कहना, ज्ञानी जी रोज़ रोज़ गुरुद्वारे आ रहे हैं कि फिर भी सुटे जावांगे? रोज़ कथा सुनते हैं, रोज़ कीर्तन सुनते हैं, रोज़ सिमरन करते हैं कि फिर सुटे जावांगे? कीर्तन सुनना होर गल है, कथा सुननी होर गल है, कथा कीर्तन नूं सुन के मन लेना होर गल है। मत्था टेकना होर गल है, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल मन लेना होर गल है, होर गल। तो इत्थे गल है मनन दी। गुरु दे बोल मन के फिर उसनूं जान। एक विद्वान पुरुष कहता सी, परमात्मा को मानो मत, परमात्मा को जानो। हकीकत है, परमात्मा को मानो मत। किसी ने कह देता रब है, असी मन ले, लेकिन परमात्मा नूं जानना है। पहला जानना फिर मानना कि हाँ हकीकत विच है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। आप जी ने सूरज नूं वेखिया, पहला आप जी ने जानिया सूरज नूं, सूरज है, फिर आप जी मनदे हो है। हुण जिहड़ा अन्ना मनुख है, उसने सूरज देखिया ही नहीं, उसकी मनोत भी उसी तरह की खड़ी हुई, क्योंकि अन्ना। हुण एक अन्ने मनुख नूं किसी ने पुछ लिया, तू दुध पीवेंगा? कहण लगे दुध दा रंग किहो जिहा हुंदा है? हुण उन्होंने जितने भी रंग दसोगे वो किवें महसूस करेगा, क्योंकि उसने कदे देखा ही नहीं, अखां ही नहीं हैं। उन्होंने कह दवो दुध चिट्टा हुंदा है, हुण फिर उसने सवाल करना ये चिट्टा किस तरह का हुंदा है? हुण उसनों कह दवो कि जिवें बगुला चिट्टा हुंदा है, फिर उसने कहना बगुला किस तरह का हुंदा है, क्योंकि अखां नहीं हैं। तो परमात्मा की जिहड़ी गल असीं करदे हां, आप जी सुनदे हो,
तो सुन सुन के उसनूं पहलां जाणो फिर मानो। हकीकत विच जो मेरा एक छोटा जिहा तजुर्बा मैं आप जी दे सामने रख रहा। जदों इस मार्ग ते आए सी, बाणी पढ़ते सी, तो बाणी पढ़दियाँ पढ़दियाँ एक दिन मैं आप अरदास की, पातशाह तेरी बाणी सच्ची है, सच्ची, लेकिन मैं किवें मन लवां कि रब है, मैं देखिया ही। मैं फिर अर्ज करा, बाणी 100% सच है, लेकिन अनुभव गुरु नानक साहिब का, अनुभव भगत कबीर साहिब का, अनुभव बाबा फरीद का, अनुभव गुरु साहिबान का, अनुभव भगतां का, वो अनुभव मेरा तो नहीं है, मेरा नहीं है। तो उन्हों का अनुभव वो मैनू कम नहीं आएगा, मेरा अनुभव आप जी नूं कम नहीं आएगा। आप जी का अपना अनुभव होना चाहिए है। जे किधरे खीर मैं खाधी है, मेरा अनुभव है कि मिठास है। ਹੁਣ इतनी गल तो मैं कह दी कि मिठी है, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ आप जी ते की फर्क पेगा? कुछ भी नहीं, जदों तक आप जी खीर नहीं खाओगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे जो बोल हैं कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, ये गुरु साहिब दे बोल ने, भगतां दे बोल ने। लेकिन मैनू किवें पता लगे सब गोबिंद है? मेरी भी तो अख खुले। तो साहब कहते ने, जब देखा तब गावां। ऐ प्रभु, ऐ परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेनों देखा फिर गावां, मेरे ते हथ रख, मेरे ते कृपा कर। तो गुरु साहिबान कहते ने, तेनों जो मार्ग दसिया जाता है, तू मार्ग ते तुरी जा, मार्ग ते तुरी जा। मार्ग ते तुरदियाँ तुरदियाँ तेनों खुद नूं अनुभव होएगा कि वाकई सब गोबिंद है। तुरी जा तू मार्ग ते, रोज़ कथा सुन, रोज़ कीर्तन सुन, और जो गुरु साहिब जी तेनों दसते ने परहेज, वो परहेज भी करना है। परहेज किसका करना है? बाणी भी सुनते गए, क्रोध भी करते गए, बाणी भी सुनते गए, लोभ भी करते गए, बाणी भी सुनते गए, हंकार भी करते गए, बाणी भी सुनते गए, निंदा भी करते गए, फिर नहीं गल बनेगी।